ఎక్కడ మనకు స్కూల్స్ లో కాలేజెస్ లో అడ్మిషన్ రావాలన్నా ఉద్యోగాలు రావాలన్నా ఏదో ఒక పరీక్ష ద్వారానే మనం దాన్ని అధిగమించాలి. సో కాబట్టి ఇది జీవితంలో ఎప్పుడూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పరీక్ష టెన్షన్ వలన చాలా మందికి చాలా టెన్షన్ అవుతాయి, డిప్రెషన్లు అవుతాయి, సూయిసైడల్ టెండెన్సీస్ వస్తున్నాయి. అది మనం చూస్తున్నాం, దేశం మొత్తం కూడా చూస్తున్నాం కదా. కొన్ని పరీక్ష రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే పేపర్లో ప్రతిసారి ఉన్నాయి ఎక్కడో కొంతమంది పిల్లలు సూయిసైడ్ చేసుకున్నారని. కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు? ఇవన్నీ అంటే ఒక పరీక్ష అనేది ఒక జీవితంలో జస్ట్ ఒక స్టెప్ మాత్రమే. మన జీవితంలో చాలా అడుగు ముందుకు వెళ్లాల్సి ఉంది. కాబట్టి కేవలం ఒక స్టెప్ మాత్రమే పరీక్ష. ఒక స్టెప్ మనం జారిపోయిందని చెప్పి ముందున్న మొత్తం లైఫ్ని, ముందున్న మొత్తం జీవితాన్ని పాటు చేసుకోవడం అనేది సరి కాదు. కాబట్టి స్వయంగాన ప్రధానమంత్రి గారు, ఎందుకంటే ప్రధానమంత్రి గారు అంటే జాతీయ స్థాయిలో మాత్రం కాదు, ప్రపంచ స్థాయిలోనే అందరూ గౌరవిస్తున్న ఒక నాయకుడు. ఈరోజు ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప నాయకుడిగా పేరు పొందిన వ్యక్తి. అలాంటి వ్యక్తి సమయం కేటాయించి పిల్లలకి చాలా అడ్వైసెస్, ఒక పుస్తకం కూడా రాశారు. ఈ మధ్య కాలంలో మీరు చూసి ఉండారు, ఎగ్జామ్ వారియర్స్ అనే ఒక పుస్తకం గురించి విన్నారా? ఎగ్జామ్ వారియర్స్. ఓకే, ఇది కూడా చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉంది. కానీ మొన్న 2 రోజుల క్రితమే తెలుగు అనువాదం కూడా గవర్నర్ గారు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. సో మీ స్కూల్స్ లో కూడా, మీ లైబ్రరీస్ లో కూడా ఈ పుస్తకాలు పెట్టడం జరుగుతుంది. దానిలో కూడా కొన్ని చాలా టిప్స్ ఉన్నాయి. ఎగ్జామ్స్ ని ఎలా ఫేస్ చేయాలి, టెన్షన్ వచ్చేటప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎగ్జామ్ అనేది మరీ అంత సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, కొంత లైట్ గా తీసుకోవాలి, అంత టెన్షన్ పెట్టించకూడదు. కేవలం పిల్లలకు మాత్రం కాదు, తల్లిదండ్రులకి, ఉపాధ్యాయులకు కూడా దానిలో చాలా అడ్వైసెస్ ఉన్నాయి. టీచర్స్ కూడా అనవసరంగా పిల్లల్ని టెన్షన్ పెట్టించొద్దు, ఎవరైనా మార్క్స్ తక్కువ వచ్చిందని చెప్పి వాళ్ళని తిట్టొద్దు, అలాంటి చేయకూడదని చాలా ఉన్నాయి ఆ విషయం. ఈ రోజు ఢిల్లీలో కల్కత్తోరా స్టేడియం అనే ఒక పెద్ద ఆడిటోరియంలో, ఇది గత 6 సంవత్సరాల నుంచి ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఒకవైపు అక్కడ ఒక వేలాది మంది పిల్లలు ఉన్నారు. అక్కడ ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం నుంచి ఉన్న స్కూల్స్, కాలేజెస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 10-15,000 చిల్డ్రన్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ అటెండింగ్ ది ప్రోగ్రామ్. వాడితో మాట్లాడుతూ, అలాగే దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఆల్రెడీ ఈ కార్యక్రమం ఆల్మోస్ట్ 1 నెల ముందు స్టార్ట్ అయింది. మీరు ఎవరైనా పరీక్ష పే చర్చ ప్రోగ్రామ్ లో రిజిస్టర్ అయ్యారా? ఉత్తరం రాశారు కదా. ఇలాంటి ఈ సంవత్సరం 37 లక్షల మంది పిల్లలు దేశవ్యాప్తంగా ఆ పరీక్ష పే చర్చ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి రిజిస్టర్ చేసుకుని అక్కడ ప్రశ్నలు అడిగారు. దాని నుంచి కొంతమందిని ఎంపిక చేసుకున్నారు. మంచి ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్ళనే మన రాష్ట్రం నుంచి కూడా ఇక్కడ కృష్ణా జిల్లాలోనే ఒక జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ నుంచి ఒక అబ్బాయి సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఆ అబ్బాయితో ఆల్రెడీ ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు. అలాగే కొంతమంది పిల్లల్ని ఢిల్లీకి పిలిపిస్తున్నారు. వేరే రాష్ట్రం, మన రాష్ట్రం నుంచి కూడా 2 పిల్లలు వెళ్ళారు, ఉపాధ్యాయులు ఒకటి అక్కడ వెళ్ళారు కల్కత్తోరా స్టేడియం. అలాగే దేశం మొత్తం కూడా పిల్లలు ఇలాగే ఈ రోజు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు మాట్లాడిన విషయాన్ని డైరెక్ట్ గా వింటారు. ఆల్మోస్ట్ 1 అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఇది. సో ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం మీతో పాటు వీక్షించడానికి మన గవర్నర్ గారు కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నారు. సో గవర్నర్ గారు కూడా ఇక్కడ కూర్చొని మీ అందరితో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ నుంచి చూడడం జరుగుతుంది. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. So as our commissioner sir was saying, the honorable governor sir will be coming. We all know about governor sir. The governor sir, he is from Odisha. He started his career. He is basically by practicing. He is a lawyer, and he shot into fame, national fame, in 1977-76 when he took the cause of the lawyers out in Odisha. That made him a very extremely popular leader in Odisha in 1976-77 itself. And immediately in 80s and so, he became the minister in the Odisha government in 1980, 42 years before. So from then onwards, time to time, he has done a long innings in government as a different minister in different portfolio. He has taken a lot of causes. He has authored a lot of books. He has authored a lot of plays. He also has, Governor Sir has authored a lot of plays in on social issues, on issues which are engaging the mind of the people. He has scripted those plays also. For any governor,
the busiest day is 26th January. As you must have seen today also in the newspaper, you must have seen in the television yesterday. The whole day morning he was busy unfurling the national flag, taking the salute, giving the speeches, giving the awards. That's the morning time. Afternoon time, the governors in all the states, they host a program called At Home at Governor's House, where all the important people, all people from all walks of life, freedom fighters, Padam Shri, Padam Bhushan, award YSR, Lifetime Achievement Award winners, people who are in social service in different fields are called, and he interacts with them and he goes. That program also goes for, so the morning program goes from 9 to 12:31, and afternoon it goes from around 4 to 6:37. So the very, very tiring day for any governor in the state. When the evening, when we told him that sir, there is a program, and where, because he released this book called Warriors, Exam Warriors in Telugu, was released by him on 24th January. He released the program. Then we said, sir, the sequel to that program is this live interaction of the Honorable Prime Minister with the students. We will arrange the program because it's coming live telecast on all the important channels today in the country. As Commissioner Sir was telling, it is being all the schools, in all the colleges, there's a TV like that, and students are watching this program. In our state also, in all the schools and colleges like this, the program facility has been provided. So we told him, since anyway coming on telecast, we will arrange the television in the Raj Bhavan only, and you can interact, you can see the program for there. He said, no, I want to get a feel by sitting among the students only. He said, so you arrange that in the evening, late evening, he told us, arrange a program in a college. Please invite the students also from the neighboring high schools, and both the college students as well as the school students will be there. Then we thought in our mind, which college students are supposed to be the best students in Vijayawada. So that's a thought which came to our mind, and that three different sources, not one. While arranging the program, you will always say that don't take input from one source, take input from three sources. Three different sources people told us that please arrange this program, Ms. Stella Paulette ma'am. So I also got the confidence to propose to the Honorable Governor, sir, that we should do it in Stella. I have only one minute to tell about, 1-2 minutes I will tell about Stella. And that's what this is a message to all of you. Somebody can
Jacinta. She was our principal in Stella Please be online. Jacinta. సార్ బయటకు వచ్చి డోర్ వేసేసరికి ఇవ్వండి. మేనేజ్మెంట్ కాపీ ఉందా? ఉందా? So welcome to Maris Stella. We are fortunate to have you. Diamond Jubilee was supposed to come. You had to go to Delhi suddenly. Now we are happy that you are here with us. Thank you. Diamond Jubilee, July here. Hearty welcome, sir. Swagatam, రాజ్యపాల మహోదయాయ సంస్కృతాధ్యాపక करियर और सक्सेस का पैशन स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना फोकस करना है तो मैंने भी फोकस होना चाहिए सिर्फ परीक्षा हर साल की तरह नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन अगर आपको फोकस करना है की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्या परीक्षा पे चर्चा 2023 आजादी का अमृत महोत्सव का लोगो आप देख सकते हैं और साथ ही साथ G20 का लोगो भी वहाँ पर दिखाई दे रहा है या दूसरे माध्यमों से और साथ ही साथ स्कूलों में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं जहाँ पर करोड़ों छात्र छात्राएं आज प्रधानमंत्री को सुनेंगे। न सिर्फ वो छात्र छात्राएं सुनेंगे जिनके अभी कुछ महीनों में एग्जाम होने हैं, बल्कि हर छात्र छात्रा, क्योंकि सिर्फ ये बोर्ड के एग्जाम की बात नहीं है। एक छोटी कक्षा कल ही भारत ने गणतंत्र दिवस मनाया है, भारत G20 का अध्यक्ष है, तो इस सब के बीच भारत अपने भविष्य की भी सोचता है और ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत अपने भविष्य की भी सोचता है और पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं ये सहजता धीरे धीरे विद्यार्थियों को 21वीं सदी के लिए तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री जी की सपना है। नीति विश्व में टेक्नोलॉजी ये भारत की बच्चों के द्वारा निर्मित होकर दुनिया की समस्या की समाधान बने, इसी अपेक्षा एनईपी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। परीक्षा पे चर्चा, एग्जाम वॉरियर, एनईपी ये एक सिक्के की अनेक पहलू है। मैं ऐसे ही एक भव्य कार्यक्रम में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में कुछ समय प्रधानमंत्री बच्चों के साथ, देश की बच्चों के साथ खुद कुछ समय बिताएं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मंच पे सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्ते। शायद इतनी ठंड में पहली बार परीक्षा पे चर्चा हो रही है। आमतौर पर फरवरी में करते हैं, लेकिन अब विचार आया कि आप सबको 26 जनवरी का भी लाभ मिले। फायदा उठाया ना जो बाहर के हैं, उन्होंने गए थे कर्तव्य पथ पे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, घर जाके क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा साथियों, समय ज्यादा लेता नहीं हूं मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है।
और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, किन उलझनों से गुजरता है, देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है और मैं तो मेरी सिस्टम को कहा हुआ है कि इन सारे सवालों को इकट्ठा करके रखिए। कभी 10-15 साल के बाद मौका मिलेगा तो उसको सोशल साइंटिस्टों के द्वारा उसका एनालिसिस करेंगे। और पीढ़ी बदलती जाती है, वैसे स्थितियां जैसे बदलती जाती हैं, वैसे उनके सपने, उनके संकल्पों, उनकी सोच कैसे बहुत माइक्रो तरीके से बदलती है, इसका एक बहुत बड़ा थीसिस, शायद ही इतना सैंपल किसी के पास नहीं होगा जी तक। आप लोग मुझे सवाल पूछ करके भेजते हैं। चलिए लंबी बातें नहीं करते हैं, मैं चाहूंगा कि कहीं से शुरू करें, ताकि हर बार मेरे पर एक शिकायत आती है कि साहब ये कार्यक्रम बहुत लंबा चलता है। आपका क्या मत है, लंबा चलता है? लंबा चलना चाहिए? अच्छा, मुझे और कोई काम करना नहीं है। अच्छा ठीक है, आप ही के लिए हूं, बताइए क्या करेंगे। कौन पहले पूछते हैं? दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को नहीं खुद को बदलना सीखे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध शहर मदुरई से अश्विनी एक प्रश्न पूछना चाहती है। अश्विनी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. My name is Ashwini. I am a student of Kendra Vidyalaya number 2 Madurai, Tamil Nadu. My question to you sir is, how do I deal with my family disappointment if my results are not good? What if I don't get the marks I am expecting? Being a good student is also not an easy job. Expectations of others become so high that the person who's giving exam gets so much stress and they go into depression. Nowadays, it is common for students to cut their hands and become irritated, and there is no one they could trust with their feelings. Kindly guide me on this. Thank you, sir. Dhanyavad Ashwini. Honorable Prime Minister Sir, Navtesh Dagur hails from the heart of India's capital, Delhi, the imperial seat of several empires, with its charming blend of a grand medieval history and amazing architectural styles. Navtesh is seated in the hall and wishes to discuss an identical issue through his question. Navtesh, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister Sir. I am Navtesh Jagur of Kendra Vidyalaya,
Pitampura, Delhi region. Sir, my question to you is, how do I deal with my family's situation when my results are not good? Kindly guide me, sir. Thank you very much. थैंक यू नवदेश। माननीय प्रधानमंत्री जी, संसार को शांति और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह तथा वर्धमान महावीर की जन्मभूमि प्राचीन नगर पटना से प्रियंका कुमारी कुछ इसी प्रकार की समस्या से जूझ रही हैं और आपका मार्गदर्शन चाहती हैं। प्रियंका, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं रवीन बालिका +2 विद्यालय से राजेंद्र नगर पटना से 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे परिवार में सब अच्छे नंबर से पास हुए हैं, मुझे भी अच्छा नंबर लाना है। इसके लिए मैं तनाव में चली गई हूँ, इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका। माननीय प्रधानमंत्री जी, अश्विनी, नवतेश एवं प्रियंका यह महसूस करते हैं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा कई छात्रों को प्रभावित करता है और इसे हल करने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। अश्विनी, आप क्रिकेट खेलती हैं क्या? क्रिकेट में गूगली बॉल होता है, निशाना एक होता है, दिशा दूसरी होती है। मुझे लगता है कि आप पहले ही बॉल में मुझे आउट करना चाहती हो। अगर परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है, उनके मन पे इतना प्रभाव होता है कि उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे, अगर बच्चे वीक हैं तो कैसे उनके सामने चर्चा करेंगे। और कभी कभी माँ बाप भी आपकी क्षमता को जानने के बावजूद भी अपने सोशल स्टेटस के कारण अपने आसपास के साथियों दोस्तों में क्लब में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, कभी तालाब में कपड़े धोए जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, बच्चों की बातें निकलती हैं, फिर उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और इसलिए बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं अपने बच्चों के लिए और फिर धीरे धीरे वो इंटरनलाइज कर लेते हैं और फिर घर में आकर के भी वही अपेक्षाएं करते हैं और समाज जीवन में ये सहज प्रवृत्ति बनी हुई है। दूसरा, आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए। चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है, लेकिन क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए क्या? पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं
और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका चौका चौका, छक्का छक्का, शिक्षक। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है क्या? ऐसा करता है क्या कोई प्लेयर? चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है, उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है। फोकस रहता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। हाँ, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन आप खुद ही इतने डिफरेंस मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए सोचते नहीं। तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बड़ी ऊर्जा बन जाती है। और इसलिए अपेक्षाएं, माँ बाप को क्या करना वो मैं पहले ही कहा, सामाजिक दबाव में माँ बाप ने बच्चों पर दबाव ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आप को नहीं आंकना चाहिए। और दोनों चीजों की बल देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसी समस्याओं को बहुत आराम से सुलझा लेंगे। न रहे, हम गांठ बांधकर परीक्षा में उत्साह बनाए रखेंगे। आपका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी से आरुषि ठाकुर आभासी माध्यम से हमसे जुड़ रही हैं। आरुषि, कृपया। बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वह यह है कि मैं पढ़ाई टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। परीक्षा और नो परीक्षा, आपने देखा होगा काम का ढेर क्यों हो जाता है। काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए। और काम करने की कभी थकान नहीं होती है। काम करने से संतोष होता है, काम न करने से थकान लगती है। सामने दिखता है अरे इतना सारा काम, इतना सारा काम, और उसी की थकान लगती है। करना शुरू करें। दूसरा, आप कभी कागज पे अपना पेन पेंसिल लेके डायरी पे लिखिए। एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहाँ बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूं कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं। और कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो फिर आपको बोझ लगेगा। मैंने 2-2 घंटे मेहनत की लेकिन ये तो हुआ नहीं। और इसलिए आप सिर्फ पढ़ना 2 घंटे ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विषय है, आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंदगी वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं। और अच्छे विषय में
खोए रहते हैं और समय भी तो बहुत जाता है। आपने देखा होगा, आप में से जो लोग पतंग चगाते होंगे, मुझे तो बचपन में बहुत शौक था। पतंग की जो माजा होता है, धागा होता है, वो कभी एक दूसरे में उलझ जा करके एकदम से बड़ा गुच्छा बन जाता है। अब बुद्धिमान इंसान क्या करेगा? यूं यूं खींचेगा क्या? ताकत लगाएगा क्या? ऐसा नहीं करेगा। वो धीरे से एक एक तार को पकड़ने की कोशिश करेगा कि खुलने का रास्ता कहाँ है, और फिर धीरे 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 खोलेगा तो इतना बड़ा गुच्छा भी आराम से खुल जाएगा और सारा माजा, सारा धागा एक जैसी जरूरत है वैसा उसके हाथ लग जाएगा। हमें भी उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से सॉल्यूशन निकालना है। और अगर आराम से सॉल्यूशन निकालेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप उसको बड़े ढंग से करेंगे। दूसरा, आपने कभी घर में अपनी मां के काम को ऑब्जर्व किया है क्या? यूं तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल से आए तो मां ने सब रेडी करके रखा था, सुबह स्कूल जाना था तो मां ने सब तैयार करके रख दिया था, लगता तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि मां का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है? उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे ये करना पड़ेगा, 6:30 बजे ये करना पड़ेगा, उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा। यानी इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट मां का होता है। और जबकि काम सबसे ज्यादा मां करती रहती है, लेकिन किसी काम में उसको बोझ अनुभव नहीं होता है। थक गई, बहुत काम है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं करती। क्यों? उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में ये तो करना है। और जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तब भी वो चुप नहीं बैठती, कुछ न कुछ अपना क्रिएटिव एक्टिविटी करती रहती है। सुई धागा लेके बैठ जाएगी, कुछ तो करती रहेगी, रिलैक्स करने के लिए भी उसने व्यवस्था रखती है। अगर मां की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है। और टाइम मैनेजमेंट ने 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे ये नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए। किस विषय को कितना टाइम देना है, किस काम को कितना टाइम देना है, और इतना बंधन भी नहीं डालने हैं कि बस 6 दिन तक ये करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है। फिर तो आप थक जाओगे। आप ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए समय को, जरूर आपको लाभ होगा। धन्यवाद। Paddy fields where the gentle breeze carries the aroma of harvested crops and the sound of traditional Kerala music. Sujal K seeks your guidance. Sujal, please ask your question. नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा नाम तेजस सुजय है। मैं 9वीं कक्षा में केंद्रीय विद्यालय कंचिकोट एर्नाकुलम संभाग का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न यह है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में से कौन सा वर्क जरूरी है? क्या अच्छी परिणामों के लिए दोनों जरूरी हैं? कृपया अपना मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद श्रीमान। Thank you, Sujal. Honorable Prime Minister, sir. क्या सवाल था उनका? क्या पूछ रहे थे? Sir, hard work के बाद हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। अच्छा, आपने बचपन में एक कथा पढ़ी होगी, सबने जरूर पढ़ी होगी, और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है। हम बचपन में थे तो एक कथा सुना पढ़ाते थे कि एक घड़े में पानी था, पानी जरा गहरा था और एक कौवा पानी पीना चाहता था, लेकिन अंदर वो पहुंच नहीं पाता था। तो उस कौवे ने छोटे छोटे कंकर उठा करके उस घड़े में डाले और धीरे धीरे पानी ऊपर आया।
और फिर उसने आराम से पानी पिया। सुना है ये कथा? अब इसको आप क्या कहेंगे, हार्ड वर्क कहेंगे कि स्मार्ट वर्क कहेंगे? और देखिए, ये जब कथा लिखी गई ना, तब स्ट्रॉ नहीं था, वरना एक कौवा बाजार में जाके स्ट्रॉ लेके आता। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो हार्ड वर्क ही करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में हार्ड वर्क का नामो निशान नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जो हार्डली स्मार्ट वर्क करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं। और इसलिए कौवा भी हमें सिखा रहा है कि स्मार्टली हार्ड वर्क कैसे करना। और इसलिए हमें हर काम को, पहले काम को बारीकाई से समझिए। कुछ लोग हो गए, आपने देखा होगा कि चीजों को समझने के बजाय सीधा ही अपनी बुद्धि अपनाना शुरू कर देते हैं, फिर ढेर सारी मेहनत करे, परिणाम मिलता ही नहीं है। मुझे याद है, मैं बहुत पहले ट्राइबल बेल्ट में काम करता था, तो मुझे काफी इंटीरियर में जाना था। तो किसी ने हमें, उस जमाने की जो पुरानी जीप होती थी, उसने व्यवस्था की कि आप उसको लेके जाइए। अब सुबह हम कोई 5:30 बजे निकलने वाले थे, लेकिन हमारी जीप चल ही नहीं रही थी। हम ढेर सारी कोशिशें की, धक्के मारे, ये किया, दुनिया भर का हार्ड वर्क किया, लेकिन हमारी जीप नहीं चली। 7, 7:30 बज गए तो एक मैकेनिक को बुलाया। अब मैकेनिक ने मुश्किल से 2 मिनट लगाया होगा, और 2 मिनट में उसने ठीक कर दिया। और फिर वो कहे, साहब 200 रुपये देने पड़ेंगे। मैं कहा, यार 2 मिनट का 200 रुपया? बोले, साहब ये 2 मिनट का 200 रुपया नहीं है, ये 50 साल के अनुभव का 200 रुपया है। अब हम हार्ड वर्क कर रहे थे, जीप नहीं चल रही थी, उसने स्मार्टली थोड़े से बोल्ट टाइट करने थे, हार्डली उसको 2 मिनट लगा हो गए, गाड़ी चल गई। कहने का तात्पर्य यह है कि हर चीज बड़ी मेहनत मजदूरी से करेंगे तो होगा, ऐसा आपने देखा होगा। पहलवान जो होते हैं, यानी जो खेल कूद की दुनिया के लोग होते हैं, उसको कौन सा खेल से वो जुड़ा हुआ है, उस खेल में उसको किस मसल्स की जरूरत होती है। जो ट्रेनर होता है उसको मालूम है, अब जैसे विकेट कीपर होगा, तो विकेट कीपर को ऐसे ही झुक करके घंटों तक खड़े रहना होता है। अब हमें क्लास में कुछ गलत किया और टीचर कान पकड़ के नीचे बिठा देते हैं, ऐसे हाथ पैर में अंदर डाल के, तो कितना दर्द होता है कि नहीं होता है? एक तो साइकोलॉजिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है कि पैर ऐसे करके कान पकड़ के बैठना होता है, तकलीफ होती है ना। लेकिन ये जो विकेट कीपर होता है ना, उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, उसको घंटों तक ऐसे खड़ा रखते हैं ताकि धीरे धीरे उसके वो मसल मजबूत हो जाए, ताकि वो विकेट कीपर के नाते अच्छा काम करे। बॉलर होता है तो उसको उस विधा की जरूरत नहीं है, उसको दूसरी विधा की जरूरत है, तो उसको वो करवाते हैं। और इसलिए हमें भी जिस चीज पे जरूरत है वहीं फोकस करना चाहिए, जो हमारे लिए उपयोगी है। हर चीज प्राप्त करने की कोशिश से
मेहनत बहुत लगेगी, हाथ पैर ऊंचे करते रहो, दौड़ते रहो, टिकना करो, फलाना करो। जनरल हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए ठीक है, लेकिन अगर मुझे अचीव करना है तो उन स्पेसिफिक एरियाज को मुझे एड्रेस करना होगा। और ये जिसको समझ होती है वो परिणाम भी देता है। अगर बॉलर है और उसके ये मसल्स ठीक नहीं है तो कहां बॉलिंग कर पाएगा, कितनी ओवर कर पाएगा। जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं उनके अनेक प्रकार के मसल्स को मजबूत करना होता है। हार्डवर्क तो वो भी करते हैं, लेकिन वो स्मार्टली हार्डवर्क करते हैं, और स्मार्टली हार्डवर्क करते हैं तब जाकर के परिणाम दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। From which children have come here, so I would like to request them to come forward to receive these books from your hands, sir. Thank you, sir. And P. Sujata, teacher, to kindly come forward. Request students and teachers from Mary Stella College Sapna to kindly come forward to receive the books. Thank you very much, sir. Thank you for handing over the books to the 4 schools, sir. Sir, here we come to the end of this. Sir, outside. Sir, outside. Madam. Outside, outside. Brother. Okay, sir. Okay. వెనకరండి వెనక్కి కెమెరా వెనక్కి సందీప్ ఫోన్ మొత్తం బరువుదాన్ని